Good morning and Jai Hind everyone. Today we all are here to discuss about the chapter Practical Geometry. Practical Geometry is basically about, in this class, is related to quadrilateral. It means in this whole chapter you have to construct quadrilaterals. If you must be remembering, in before this chapter we have studied about the quadrilaterals. ठीक है, हमने एक chapter पढ़ा था Understanding Quadrilateral. And in understanding quadrilateral, we have studied about quadrilateral. I think almost all the types we have studied, and also we have discussed the properties related to it. So आपको इस chapter में बेटा वही सब use करना है, and you have to construct the quadrilaterals. In previous class, I have also discussed one more thing, that in a quadrilateral, whenever you have a quadrilateral, just now Apeksha has also discussed that in a quadrilateral you have four sides, four angles and two diagonals. Now these are the dimensions which you can measure. ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें तो उनमें ये 10 डायमेंशंस ऐसे होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं. You can measure sides, you can measure angles, you can measure diagonals. It means you have total 10 dimensions. Now remember, कभी भी अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको मिनिमम 5 डायमेंशंस पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन नॉट. Okay, so remember you need at least 5 dimensions to construct a quadrilateral. So students, we are going to begin exercise 4.1, and remember in exercise 4.1 you have to mainly construct a quadrilateral when you have 4 sides and 1 diagonal given. Now you can see this. 4 side मतलब 4 dimension, 1 diagonal मतलब 4 plus 1 मिला करके हो गया total 5. As I have already told you that किसी भी quadrilateral के construction के लिए you need at least 5 dimensions. ठीक है, तो यहाँ हो गए हमारे 5 dimension. It means हमारा quadrilateral construct हो जाएगा. Now one more thing which I want to tell you all, in this exercise you don't have many questions. तो बेटा please questions पूरा note करिएगा. ठीक है, क्वेश्चन राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई जस्ट वांट टू मेंशन वन मोर थिंग. whenever you construct something, whether you are talking about a quadrilateral, you are talking about a triangle or whatsoever it is, always remember that rough sketch is important. याद रखिएगा, रफ स्केच आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. आपको जैसे आपको पता होगा कि आपकी घर की जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है या कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो आपके घर पे लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि आपके पापा या मम्मी जो भी पर्सन घर बनवा रहे होते हैं, वो सबसे पहले घर का आउटलुक तैयार करवाते हैं. आउटलुक का मतलब होता है नक्शा. ठीक है, उसके थ्रू फिर पूरा घर बनता है. तो सबसे पहले क्या करता है आर्किटेक्ट जो होता है, जैसा आपका घर बन रहा होता है सेम उसी फॉर्म का एक नक्शा बना के देखता है. नक्शा का मतलब ये होता है कि जो बनना है यहाँ पे, जिस डायमेंशन का बनना है, वो उसी फॉर्म में यहाँ पे रफ वर्क के फॉर्म में होता है. उसी को देख करके फिर जो आपके लेबर्स होते हैं, जो आपका घर कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग होते हैं, वो उसी डायमेंशन को फॉलो करते जाते हैं. ठीक है, कि पहले क्या बनेगा फिर क्या बनेगा. सो द सेम वे आपको जब भी कभी कुछ चीज कंस्ट्रक्ट करनी हो, तो सबसे पहले आपको उसका रफ स्केच ड्रॉ करना चाहिए. अगर आपका रफ स्केच सही है तो आप इजीली किसी भी डायग्राम को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ठीक है, so now I would request you all to please note it down. Exercise 4.1, question number 1 from the book right now. In this you have to construct ABCD is a quadrilateral where AB is given 4.5 centimeter, BC is given here 5.5 centimeter. Then you have been given CD. CD is given here 4 centimeter. Then you have AD which is given 6 centimeter.
and last but not the least AC, which is given now 7 centimeter. Now I have written all the dimensions which were given to us. ठीक है, now let's draw the rough sketch for it. rough sketch के लिए क्या करना है बेटा, आपको simply draw कर लेना एक quadrilateral. ठीक है, किसी भी डायमेंशन से, आपको किसी भी डायमेंशन की जरूरत नहीं है, आप बड़ा बनाना चाहो बड़ा, आप छोटा बनाना चाहो छोटा, जैसा भी है, क्योंकि ये रफ है. So I have just drawn it like this. Now let me give the name to it. A, B, C, D. The name can be given clockwise or it can be given anti-clockwise. So now the name I have given A, B, C, D. Now look at here. AB is given 4.5. I will write it down here 4.5. BC is given here 5.5. I'll write it down here 5.5. CD is given here 4 centimeter. I'll write it down here 4 centimeter. AD is given here 6 centimeter. I'll write it down 6 centimeter. And then AC. AC कितना दिया हुआ है बेटा, 7 दिया हुआ है. That means this is the diagonal. And AC कितना है हमारे पास, 7. So I am writing it here 7 centimeter. Now I have drawn the rough diagram. ठीक है, now you also have your rough diagram and then we will begin how to start constructing the quadrilateral. Always remember, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं क्वाड्रिलेटरल का और आपको 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हुआ है, तो बेटा आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए, डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए. क्यों डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए, लेट मी टेल यू. क्लास 7th में आपने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, और आपको याद होगा कि ट्राइंगल का जब आपको बेस पता होता था तो आप बहुत इजीली ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते थे. ठीक है, आपको अगर पुराना क्लास का कुछ याद हो तो आपको याद होगा कि हम सबसे पहले बेस ड्रॉ करते थे, उसके ऊपर हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर जाते थे ट्राइंगल को. द सेम वे आपको यही करना है. क्वाड्रिलेटरल इज नन अदर देन 2 ट्राइंगल्स. ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, और 2 ट्राइंगल कब बने, जब डायगोनल ड्रॉ किया गया है ना. तो इट मींस डायगोनल एक ऐसी लाइन है जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है. तो इट मींस हम सबसे पहली हेल्प लेंगे इसमें डायगोनल की. डायगोनल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, प्लीज ड्रॉ 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ योर स्केल and give the name AC to your diagonal. So this is now AC and I'm drawing 7 centimeter. You also draw 7 centimeter. So this is my AC, AC, and this is 7 centimeter by using my scale. Now you also draw it accordingly. 7 centimeter. This question you have to do it along with me. So I would like to tell you all, please draw one by one all the things which I am also doing it. Okay. Now look at here the next step. As you will draw AC of 7 centimeter, next क्या करना है आपको, अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को अच्छे तरीके से देखें तो आपको पता होगा, हम AC के ऊपर अगर जाएं उस तरफ, AC के उस तरफ जाएं तो हमारे पास क्या है B, और अगर हम AC के इस तरफ आए तो हमारे पास क्या है D. तो इट मींस अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एक वर्टिस ऊपर जाएगा, एक वर्टिस नीचे जाएगा, बिकॉज A और C आपके पास है. यू नीड B एंड D. तो आप एक तरफ अगर आप चाहो तो B ऊपर ले लो, अगर आपको लगता है B नीचे लेना है तो आप B नीचे ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू आप कहाँ लेना चाहते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए, A से B तक जाने के लिए वी नीड 4.5 एंड C से B तक जाने के लिए वी नीड 5.5. ठीक है, तो सबसे पहले टेक योर स्केल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू मेजर 4.5. So I am taking now 4.5 here. My 4.5 is this. So now I will keep on A, और आपको पता है A से B के डिस्टेंस है 4.5, तो मैंने ये कट किया A से B के लिए, that is 4.5. ठीक है, now the same way
C से B के लिए you need 5.5. So again I will take my scale and I will measure 5.5 from the scale by putting our compass into it. So this is 5.5 now. So now I will place on C and I will mark like this. Now look at here. I got the intersection arc. आप देख सकते हो यहाँ पर हमको वो वाला आर्क मिल गया जैसे हमको ट्राइंगल में मिलता था. इट मीन्स आई गॉट द पॉइंट B. बिकॉज मैं अभी तक B के लिए मेहनत कर रही थी, तो आई हैव गॉट द पॉइंट B. नाउ स्टूडेंट्स, द सेम वे जैसा अभी हमने AC को ध्यान में रख के B पॉइंट को पाया है, कैसे 4.5 लेके 5.5 लेके, द सेम वे हम वही काम करेंगे. A पॉइंट पे रखेंगे D के लिए 6 सेंटीमीटर लेंगे, C पॉइंट पे रखेंगे D पॉइंट के लिए 4 सेंटीमीटर लेंगे. नाउ अगेन वी विल यूज आवर स्केल एंड मैं A से D के लिए लूंगी 6 सेंटीमीटर. सो लेट मी ओपन 6 सेंटीमीटर. दिस इज माय 6 सेंटीमीटर हियर. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, ए की मदद से, ए की हेल्प से हम क्या करेंगे, नीचे बिलो पर देखो, आप देख सकते हो पॉइंट डी बिलो है. तो ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर का आर्क. ठीक है. नाउ सी से डी तक जाने के लिए वी नीड 4 सेंटीमीटर. तो सी से डी के लिए 4 चाहिए. तो अब हम अगेन अपना स्केल ओपन करेंगे एंड हम लेंगे अब इस बार 4 सेंटीमीटर का आर्क. So this is my 4 centimeter. Now I have got 4 centimeter also. So now I will place on C and इसको कट करेंगे आर्क. I have got my next point. देखो नीचे भी आर्क मिल गया, ऊपर भी आर्क मिल गया. मतलब ऊपर वाला था पॉइंट B, नीचे वाला था पॉइंट D. Now I have got both the vertices जिसको हमें चाहिए था. ठीक है. अब जैसे ही हमने यहाँ तक ड्रॉ किया, now with the help of scale, you will be just joining all the points. हम join करेंगे A से B को, A से D को, फिर B से C को and then C से D को. Now you can see this is my required quadrilateral which I was wanting before. Now I will only give the name which is left. It was 4.5 centimeter. This is 5.5 centimeter. This is 6 centimeter and this is 4 centimeter. Beta, remember labeling and the measurement. It's very, very important to mention here. Now students, question number 2 is very easy. It was just similar like question number 1. Question number 3 and 4 are little different. Let me tell you, it's just little different. अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, दैट इज मोर. और आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि उसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो अगर हम बात करें कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको पता है इसमें 2 साइड्स दी हुई हैं. ठीक है. तो आपको पता है 2 दी हैं, इसका मतलब 4 दी हुई हैं, है ना. अगर 2 दी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि आपको 4 साइड्स दी हुई हैं, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर एक 4.5 है तो दूसरी भी 4.5 होगी, और अगर एक 7.5 है तो उसकी ऑपोजिट भी 7.5 होगी. सो दैट मीन्स आपको इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में all 5 dimensions you have got it, because 3 are given right now. 3 are given right now. It means 2 more you will get it because opposite sides are equal. So it means 3 और 2 मिला करके हो गया टोटल 5. और जैसे ही आपको 5 डायमेंशंस मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा. क्यों इजी बन जाएगा? बिकॉज आप सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद एक एक करके आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. द सेम वे लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा केवल 2 डायमेंशंस दिए हुए हैं. व्हाई? बिकॉज द फिगर इज रिटन हियर रोम्बस, और आपको पता है रोम्बस का मतलब होता है विच हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम नाम देते हैं तो इट विल गिव यू नाउ BEST. ठीक है, BEST.
Now let's see what is given now. Here it is given. Draw this. Yes, you can draw this, beta. Now this is BE. BE is given here 4.5, and you are knowing BE is a side and you are knowing it is a rhombus. That means all four sides are 4.5 only. सारी की सारी 4.5 हो गई है ना, और आपको जब सारी की सारी 4.5 हो गई मतलब आपको 4 डायमेंशंस मिल गए, ठीक है। नाउ लेट्स सी ET. ET इज गिवन 6 सेंटीमीटर, मतलब हमारा ET ये हो गया, आपको पता भी है दिस इज डायगोनल नाउ, एंड ET इज गिवन 6 सेंटीमीटर. नाउ सी द फिगर. आपको एकदम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आपने किया था, बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको ये वाला भी मिल गया. इसमें देखिए ET दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर जो कि आपका डायगोनल है, बाकी 4 साइड्स दी हुई है, मतलब 1 2 3 4 5, टोटल 5 डायमेंशंस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, मतलब अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा. So dear students, as you all can see, the question is just similar like question number 1. So let's begin now how to do this question. As you all can see, सबसे पहले हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डायगोनल, इसमें एक ही डायगोनल है, दैट इज ET. तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया ET विच वाज गिवन 6 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले मैंने इसको ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक आ रहा है, और इसका नाम है अकॉर्डिंग टू माय रफ डायग्राम, इसका नाम है TE. तो TE बोलिए आप या ET बोलिए, दोनों ही हो गए सेम. सो नाउ आई एम राइटिंग हियर TE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ किया हमने डायगोनल. उसके बाद यू कैन सी हियर T से आप कहीं भी देखो, यहाँ पे जितने भी डायमेंशन है सारे 4.5 है. E से S जाना है तो 4.5, T से S जाना है तो 4.5, T से B आना है तो भी 4.5, और E से B आना है तब भी 4.5. इसका मतलब यह है कि आपको अपने कंपास से केवल एक ही बार मेजर करना है 4.5. So I am taking my compass and I am taking the help of my scale to measure 4.5. So this is 4.5. Now I have measured it. Now I will just place my compass needle on T and I will start constructing. This is first. नाउ E से भी यही काम करेंगे, ये हो गया हमारे पास सेकेंड. ऊपर वाला काम खत्म बिकॉज हमको मिल गया क्रॉस. अब हम सेम यही काम करेंगे नीचे. तो ये लिया हमने E से. नाउ दिस वन, एंड द सेम वे आई विल डू इट लाइक this. Now finished. You can see I have got both the side arc. Now I will just give the name. You can see ऊपर की तरफ यहाँ पर S था, इसका मतलब हमें भी S मिला है. नीचे की तरफ यहाँ B था, इसका मतलब ये है कि हमें नीचे B मिला है. And now we have to only join with the help of scale. So now I am joining this. ये join किया आपने फर्स्ट वाला, ये ज्वाइन किया आपने इसमें सेकेंड वाला, ये वाला ज्वाइन किया आपने इससे थर्ड वाला, एंड ये ज्वाइन किया आपने इससे लास्ट वाला. नाउ दिस इज आर rhombus. Now I will just name it 4.5 centimeter this side, 4.5 centimeter this side, 4.5 centimeter this side, 4.5 centimeter this side. Now it's all done.